نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف لین۔ ٹھیک ہے، حروف لین کسے کہتے ہیں، حروف لین کیا ہیں، حروف لین کتنے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حروف لین ہیں کتنے۔ تو حروف لین دو ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ ایک یا ہے اور ایک واو ہے، ٹھیک ہے۔ دو حروف لین ہیں، یا اور واو۔ ہر یا ہر واو جو ہے وہ حروف لین کہلائے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، ہر یا اور ہر واو جو ہے حروف لین نہیں ہوتا، بلکہ کون سا واو اور کون سا یا حروف لین ہوگا؟ ایسا یا جس کے پچھلے حرف پر زبر ہو، اور ایسا واو جس کے پچھلے حرف پر زبر ہو اور خود یہ دونوں ساکن ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسا یا ساکن جس کے پچھلے حرف پہ زبر ہو، اور ایسا واو ساکن جس کے پچھلے حرف پہ زبر ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ دو جو ہیں حروف لین ہیں۔ کون بتائے گا کہ اگر یا ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف پہ زیر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ یا مد۔ اور اگر واو ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف پہ پیش ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ واو مدہ۔ کیا واو مدہ کے پچھلے حرف پہ کبھی زیر ہو سکتی ہے؟ واو مد نہیں، ٹھیک ہے، واو مدہ کے پیچھے یا تو زبر ہوگی اور یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے۔ زبر ہوگی تو وہ واو لین کہلائے گا، پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ اسی طرح جو یا ساکنہ ہے اس کے پچھلے حرف پہ زبر ہوگی تو وہ یا لین کہلائے گا، اور اگر پچھلے حرف پہ زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گا۔ یا ساکنہ کے پچھلے حرف پہ کبھی بھی پیش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیسن میں حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف مدہ کو ہم کتنی حرکات کے برابر کھینچتے ہیں؟ 2 کاؤنٹس، 2 حرکات، 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور 2 حرکات کے برابر ہم اس کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں، یعنی کہ جیسے اگر با ہو، با کے نیچے زیر ہوتی تو ہم کہتے ہیں بی، ٹھیک ہے۔ یا اگر واو مدہ ہے تو اس کے پیچھے با ہوتی تو ہم کہتے با پیش واو بو، ان 2 حرکات کے برابر۔ لیکن جو لین حروف ہوتے ہیں نا، ان کا وہ حروف مدہ کے برابر نہیں ہوتے۔ حروف مدہ 2 حرکات کے برابر کھینچی جاتی ہے، جبکہ جو لین ہے، حروف لین جو ہیں وہ 1 حرکت سے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن 2 حرکات سے کم ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 حرکت کے برابر ان کی مقدار ہوتی ہے حروف لین کی، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے برابر ان کی مقدار نہیں ہوتی، یعنی جیسے ہم کہیں بی، اور ہم لین کو اگر ادا کریں گے تو وہ کیسے آئے گا؟ بئی، بی اور بئی، اور بئی کی مقدار 2 حرکات سے کم ہوتی ہے۔ بئی، اس کو ایسے نہیں ہم نے کرنا کبھی بھی بائی، یا نہ با کو لمبا کرنا ہے نہ یا کو بہت لمبا کرنا ہے کہ وہ لمبا ہو جائے۔ با زبر یا بئی، تا زبر یا تئی۔ اسی طرح اگر واو ہو، با زبر واو بو، تو یہ کیا ہوا؟ حروف مدہ سے ان کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن یعنی ایک جو حرکت ہے اس سے زیادہ ہوگی لیکن 2 حرکات سے کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو یہاں پہ، اور دوسرا ایک اور چیز ہے ان کی ادائیگی کے وقت، نہ تو ان کو کھینچنا ہے کہ بائی، با کو نہیں کھینچ کے ایسے نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ان کو ایک دم سے جھٹکا دینا ہے بئی، ایسے کو جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ نہ جھٹکا دینا ہے، نہ کھینچنا ہے، اور نہ ہی ان کو مجہول پڑھنا ہے۔ مجہول ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بعض دفعہ جیسے ہم اردو کے لیٹرز پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں، ہم یہ ورڈ ہے تو، اردو میں ویسے کرتے ہیں نا تو، لیکن عربی میں یہ تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو، تو، تئی، ثو۔ ہم اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں ہم کہیں گے سو، ٹھیک ہے۔ یا یہ اردو میں سین زبر واو سو، سو جو ہم 100 لفظ بولتے ہیں 100 کو 100، تو وہ ایسے ہوتا ہے، لیکن عربی میں 100 کی یہ کوئی بھی جو ہے وہ آواز نہیں ہے۔ سو، سین زبر واو سو،
ٹھیک ہے، یہ آواز آپ نے بالکل ایگزیکٹ جو ہے اس کو سیکھنی ہے، کیونکہ بعض جو ہیں جنہوں نے پڑھانا پڑا ہوا ہے بعض دفعہ وہ اس کو مجہول کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی اس ورڈ کو دیکھنا ہے۔ اب باری باری انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے اس کو پڑھ سکیں۔ جی ریحانہ شروع کیجیے، کوئی ٹیچر جو ہے نمبرنگ ان کی کرتے ہیں۔ جی السلام جی ریحانہ علیکم۔ پہلی والی لائن جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے، پڑھیے۔ باقی سب اپنے مائک بند کر لیجئے، بہت شور آ رہا ہے، جس کو میں صرف نام لوں وہ مائک کھولے بس۔ جی جی ریحانہ۔ تا زبر واو، یہ اس طرح کر کے پڑھوں یا تاؤ؟ نہیں، جسٹ صرف ساؤنڈز، ہجے نہ کریں۔ تاؤ، تئی، ساؤ، سئی، داؤ، دئی۔ بارک اللہ۔ نیکسٹ ایمان زارا، ایمان زنیرہ۔ آ رہی ہے، ہلکی جا رہی ہے، تھوڑا سا اور ذرا اونچا۔ ایک سیکنڈ۔ ایمان آواز نہیں اب آپ کی آ رہی۔ میم اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بولیے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زو، زئی، رو، رئی، زو، زئی۔ اچھا مجھے بتائیے ایمان، ذال جو ہے، ذو، ذال کی جو ساؤنڈ ہے اور زا کی جو ساؤنڈ ہے، ان میں کیا فرق ہے آپس میں؟ ہم کیا ان کو ایک جیسے ہی ذو، ذو اور ذو دونوں سیم ہوں گے؟ نو میم، کیسے، کیا فرق ہے ان دونوں کی آواز میں؟ میم میم زال کو ہم اوپر والے دانتوں سے ٹچ کر کے زبان کو پڑھتے ہیں، ہم، اور زال کو ہم تھوڑا سا باریک پڑھتے ہیں، دونوں ہی باریک ہیں، باریک تو دونوں مطلب ہی باریک، ہیں۔ ہاں اس اوپر والے دانتوں سے کر کے۔ صحیح، اور زا کو؟ زا کو باریک، دونوں ہی باریک پڑھیں گے۔ کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ میم اصل میں میں آج مجھے میری پہلی کلاس ہے، میں نے ابھی پچھلے لیکچرز کور کر رہی ہوں اسٹارٹ سے۔ چلیے آپ میں بھی دھیان بتاؤں؟ سے سنیے۔ نمبر 3 پہ کون، نہیں ابھی میں ذرا اس کو ان کو ایمان کو ذرا میں کر لوں ایک دفعہ۔ اچھا زال جو ہے نا، جی زال میم۔ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں کو ایسے لگانی ہے کہ تھوڑی سی زبان کی نوک جو ہے دانتوں سے باہر آ جائے، اور بہت نرمی سے لگانی ہے، ٹھیک ہے، بہت نرم، یعنی یہ ان لیٹرز کو نرم لیٹرز کہا جاتا ہے، بہت نرمی سے یہ ادا ہوتے ہیں، سختی نہیں ان میں ہوتی، پھر ان میں سٹی کی آواز نہیں ہوتی، وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہوتی زال میں۔ کس کس میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہوتی؟ زال، وا یعنی زوئیں جو ہمارا اردو کا ہے، اور تیسرا لیٹر کیا ہے؟ سا۔ یہ ایک ٹھیک ہے، فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تینوں، اور تینوں کا مخرج سیم ہے، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں سے اس طرح لگانی ہے کہ تھوڑی سی زبان دانتوں سے باہر آ جائے، نرمی سے لگائیں گے، یہ نرم حروف ہیں، ذا، ٹھیک ہے، ذو، یہ ساؤنڈ آنی چاہیے، جو آواز چلنے کی ساؤنڈ ہے، رخاوا کی صفت ہے اس کی، ذو اور ذی، ٹھیک ہے، لیکن جو زا ہے یہ اس زبان کی نوک جو ہے نیچے والے دانتوں کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، زا جو ہے تو، اور اس میں کیا ہے، سیٹی کی آواز بھی پائی جاتی ہے، زال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، زا میں تیز آواز، زو، زئی، ٹھیک ہے، اور اوکے میم۔ را جو آپ نے پڑھا رو، را پہ جب بھی زبر ہوگی را موٹا پڑا جائے گا، رو، رئی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اوکے میم۔ ٹھیک ہے بارک اللہ۔ نمبر 3 پہ کون ہے؟ میں جی فرحت پڑھیے نیکسٹ لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو، سی، دوبارہ شو، سے، دوبارہ سو، واؤ کو نا اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، سو ایسے ساؤنڈ نہ آئے، سو، 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 ہم سی، ہم شو، شئی، ہم سو، سی۔ گڈ۔ اچھا مجھے آپ بتائیے، سین اور صاد ان کی ساؤنڈز میں کیا فرق ہے؟ سین جو ہے یہ اس میں نا سیٹی کی آواز آئے گی،
اور سواد میں نہیں آئے گی؟ स्वाद में भी आएगी, दोनों बारीक ही हैं. دونوں باریک ہے. नहीं, स्वाद मोटा है, सीन जो है वो बारीक. بالکل دونوں میں سین اور صاد میں زیادہ فرق نہیں ہے. فرق جو مین ہے کیا ہے؟ سین ایک باریک حرف ہے اور صاد ایک موٹا حرف ہے. دونوں میں سیٹی پائی جاتی ہے. سین کی سیٹی باریک ہوگی سو, یہ والی ساؤنڈ سو سو. صاد کی سیٹی جو ہے وہ موٹی ہے سو سو. ٹھیک ہے, اس میں زبان کی جڑ بھی اٹھے گی اور درمیان میں زبان کے جو درمیانی پارٹ ہے اس کا زبان کا وہ جیسے گھڑا سا بن جائے گا اور آواز جو ہے وہ موٹی نکلے گی. سو سو سوئی. ٹھیک ہے, सौ بارک اللہ. جی نمبر 4. اپنے نمبرنگ دیکھتے جائیے, خود سے مائک کھولتے جائیے. جی حکیمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ لائن پڑھیے. زو زئی ہم، تو تی تو نہیں تو اور تئی. ہاں توئی تو یہ تا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہے. تو موٹا تو توئی. توئی. ہم، زوئی دیکھ کے. وا زبر واو, زو غو موٹا کر کے, غا موٹا زو غو. زو زئی غی غا 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 کو موٹا کریں غی. زئی اچھا آپ مجھے بتائیے, یہ پہلا ہے ضاد, طا اور غا, ان تینوں میں کیا چیز کامن ہے؟ کیا چیز ایک جیسی ہے تینوں لیٹرز میں؟ جی حکیمہ. زو. جی ان تینوں لیٹرز میں, غاد میں, طا میں اور غا میں کیا چیز کامن ہے ان تینوں میں؟ زو آپ نے پچھلی کلاسز لی تھی میرے ساتھ؟ لاسٹ کلاس میں نہیں آئے تھے میم. نہیں یہ وہ لاسٹ کلاس کا لیسن تو نہیں ہے, یہ تو بالکل پہلے اسٹارٹ والے لیسنز میں سے ہے. جی اسٹارٹ سے تو میں ہوں. اچھا یہ تینوں حروف جو ہے نا یہ موٹے ہیں. ان کی میں کامن چیز کیا ہے, ایک جیسی کیا بات ہے؟ غاد بھی موٹا ہے, طا بھی موٹا ہے اور غا بھی موٹا ہے. یہ تینوں حروف موٹے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے. اور کلاس مس دیکھیں ہفتے بعد ایک کلاس ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں یہ مس نہ کریں. یا اگر کسی کی جی مس جی ہو بھی نہیں جاتی ہے, لاسٹ. جی اگر دیکھیں اگر مس ہو بھی جاتی ہے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے. تو آپ لوگ ریکارڈنگ سے, تاکہ آپ یہ بیسکس ہیں بالکل, اگر یہ آپ کی مس ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگوں کی جو ہے وہ پھر بہت سی چیزیں آپ کی مس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اوکے جی لاسٹ نیکسٹ. ویک بائی مسٹیک مس ہو گئی وہ. اوکے اوکے نمبر 5 ہما. لو لئی, نو نئی, آئی. یہ آواز بند ہو گئی تھی. نئی کے بعد کیا ہے؟ نو نئی, او آئی. گڈ, بارک اللہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بو بئی, جو جئی, ہو ہئی. گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی نو نہیں, او آئی. نہیں یہ والا نہیں, سیکنڈ لاسٹ لائن, خواہ والی لائن. جی خو, جی خو خوئی, او آئی, غو غوئی. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ. اچھا مجھے بتائیے خواہ اور غین میں کیا چیز کامن ہے؟ میم جی خواہ, یہ غین اور خواہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. نہیں حلق کے نیچے والے سنی, یہ تو اوپر والے سے ہوتے ہیں نا.
ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो, जो सबसे ऊपर वाला सॉरी, मुंह के नजदीक हलक के होता ऊपर है। वाले हिस्से से। और इसके जी। अलावा और क्या हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि एक चीज कॉमन क्या है कि ये एक ही जगह से दोनों अदा होते हैं, हलक के ऊपर वाले हिस्से से। इसके अलावा और क्या चीज कॉमन है? और मैम जी इसको मतलब इसको मोटा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं ठीक ठीक बात बता रही है, बताइए बताइए। मैम जी, इसको मोटा पढ़ना ये हरूफ मुस्तालिया में से है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों जो है इनमें कॉमन क्या चीज है कि दोनों मोटे हरूफ हैं। और जो आइन है जी। वो क्या है भला, क्या वो मोटा है? ये जी आइन आइन क्या जो मोटा है हरफ ये हल ये हल्के के दरमियान में से अदा होता है, ये हरूफ हल्की है। और नहीं मैम जी, मोटा नहीं है। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फौ फी फई कौ कई कौ कई। अच्छा मुझे अब आपकी ना इस कऊ की और इस कऊ की आवाज बिल्कुल सेम लगी है। आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए? ये पहले मैम वाला ये जो पहले वाला है जो ना थोड़ा इसको मोटा करके पढ़ेंगे, दोबारा और से। जो एक तो मोटा, एक और इसका मखरिज क्या है पीछे, जरा जुबान की जड़ जो है पीछे नरम तालु को टच आपको खुद फील हो। दोबारा से इसको पढ़िए जरा। कौ क देखें, कौ कऊ कौ कऊ कौ और पीछे कौ कई 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 और पीछे लेके जाइए उसको। कौ कई और बारीक वाला कैसे कौ पढ़ेंगे? और ये कौ और कई। देखिए इनकी दोनों की आवाज देखिए, उन्होंने साथ साथ भी देखिए इसीलिए लिखे हुए हैं कि जी आपको जी इनकी आवाजों में खुद फर्क करना आना चाहिए। दोनों की जी आवाजें एक जैसी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। ये जी मोटा है कॉफ, और दूसरा जी इसका जो मखरिज है वो कहाँ पे है? जुबान की जड़ पीछे नरम तालु को पीछे से लगेगी। नतालु और से इसका मखरिज क्या है? जुबान की जड़ जो है आगे वाले से सख्त तालु को लगेगी। तालु से तो इनकी लगेगी। आवाजें इस तरह फर्क है, क कऊ कई, और बारीक कौ वाला कऊ कई और कई। कई। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। बारकल्लाह। जी नेक्स्ट। नंबर 9 पे कौन है? मैं पढ़ूं? जी। माऊ मई, वाऊ वई, हाउ हई, याओ यई। गुड माशाल्लाह बारकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताइए नसरीन हबीब, वाऊ जी, आपने बोला वाऊ, वाऊ के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाऊ का मखरिज हम कैसे अदा करेंगे? फोटो को गोल करेंगे, हाँ आगे की तरफ बिल्कुल, जाएंगे। दोबारा से इसको जरा पढ़िए। वाऊ वाऊ वई। बारकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब और नेक्स्ट कौन है? यस मैम, मैं जी विनाया। स्पेलिंग से पूछ। जी शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौ तई फौ फई दौ दई। अच्छा मुझे बताइए, सौ सा सा जो है, सा की आवाज में और सीन की आवाज में क्या फर्क होगा? सीन जो है वो हरूफे सीरिया में से है, उसमें से सीटी की आवाज आती है, बिल्कुल जबकि में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बारकल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। तौ तई रौ गई, रौ 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 को मोटा कीजिए। रौ गई, हम्म दौ गई, सौ हम्म, गई। बस बस बस। आप मुझे बताइए कि जा और जाल, इन दोनों की साउंड में क्या फर्क है? दाल और मैम ये अलग से निकलती है। नहीं नहीं, अलग से तो नहीं, एक मिनट रुकिएगा जरा। जाल जाल और जा, इन दोनों की दाल आवाज में क्या फर्क है? इनको बारीक करते हैं हम, जी इनको बारीक करते हैं। बारीक पढ़ते हैं, बिल्कुल। ये तो होगी इनकी, इनका कॉमन चीज होगी। फर्क क्या है? हम इन दोनों को, अगर मैं बोल रही हूँ जऊ या मैं बोल रही हूँ जऊ, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं जा बोल रही हूँ कि जाल बोल रही
एक मोटा पढ़ा जाएगा और एक बारीक। नहीं नहीं नहीं, दोनों बारीक है, अभी तो आपने बताया दोनों कि दोनों दोनों बारीक है। बारीक है। हाँ दोनों बारीक, बिल्कुल। जाल जो है इसके अंदर सीटी की आवाज नहीं है, नरमी के साथ अदा किया जाता है, ये मैंने अभी पहले 2 मिनट पहले बताया। जाल कब अदा किया जाता है, जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों को नरमी से लगाते हैं, थोड़ा सा इस तरह लगाते हैं कि जुबान जो है दांतों से बाहर आ जाए, ठीक है, तो वो जाल है। अगर जुबान की नोक को नीचे वाले दांतों को लगा के हम सीटी की आवाज पैदा करते हैं तो वो जा है, जा, जा और जा, रऊ, रऊ के लिए ऊपर के दांत, और जा सीटी की आवाज जाल में नहीं होगी। जा के लिए क्या होगा, नीचे वाले दांत टच करेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी आएगी, रऊ और जऊ। जा के लिए नीचे वाले दांत करेंगे और दऊ के लिए हम ऊपर वाले दांत को यूज करेंगे, ऐसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। जो जाल है ये वाला पहले वाला जो है जाल, इसके लिए जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को नरमी से लगानी है, बहुत नरम, ये आवाज सीटी की आवाज ना पैदा हो। लेकिन जा के लिए हम नीचे वाले दांतों को लगाएंगे और सीटी की आवाज खुद पैदा करेंगे, जा, ठीक है, ये फर्क है इन दोनों। जरा इन दोनों को इकट्ठा अदा कीजिए, इन दोनों वर्ड्स को। जऊ, 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 सीटी और ज्यादा पैदा, जऊ, और सीटी, जऊ, इसकी आपने ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपकी सीटी की आवाज मुझे सीटी सुनाई दे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कौन है निम्रा के बाद? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सबको क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है मैम। मैम जी आपकी आवाज ठीक आ रही है। नेक्स्ट कौन है निम्रा के बाद? 15 पे कोई भी नहीं है। शाहजहान, माइक खोलिए। जी मैम। अस्सलाम। जी नेक्स्ट। सही, कहू सही, कहू सही। आपकी सारी आवाज तीनों वर्ड्स की एक जैसी मुझे सुनाई दी, दोबारा से। कहू सही, कहू सही, कहू सही। देखिए मेरी बात कौन रहा है? सबा पढ़ रही है? ओके, देखिए सऊ, सीन जबर वाओ सऊ, इसमें सीटी की आवाज आपकी आनी चाहिए। सही, देखिए जुबान नीचे लगाएं, नीचे वाले दांतों के अंदर लगाएं, सऊ। मेरी आपको सीटी की आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आपकी नहीं मुझे आ रही। सऊ, सही, सही, हाँ। अब शीन की आवाज में भी शोर होता है, ठीक है, ये वाली साउंड होती है, शऊ, शई, सही। अभी और सीटी और इसमें तफशी पैदा कीजिए, और ज्यादा इसके अंदर शुरू से लाइए। अच्छा, इनकी जो टीचर है ना, वो इनके साथ इनको जरा बार बार प्रैक्टिस करवाएंगी और इनको ये सीटी और शीन की तफशी जो है वो वाज़ेह करवाएंगी, ठीक है। और स्वाद ये पढ़िए, स्वाद वाला वर्ड। सही। ओके, आप मुझे बताइए कि सीन और स्वाद की आवाज लेटर्स में क्या फर्क है, इनकी आवाजों में क्या फर्क होना चाहिए? जी मैम, दोनों में सीटी की आवाज आती है। और सीन स्वाद मोटा लफ्ज से, और सीन बारीक। गुड, आपने अपनी टीचर को कहना है मुझे इसकी आवाज निकलवाएं, और आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जी मैम। जी ठीक है, बारकाल्लाह जी। नेक्स्ट कौन है? नंबर 16, शाहजहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दो दही, दो दही, तऊ तई। जी मैम आवाज आ रही? हाँ जी यार, ये पढ़ते चाहिए, मैं बताती हूँ आपको, आप पढ़िएगा। तऊ तई, लो रई। अच्छा, लो, इन तीनों हरूफ, बस बस बस, ये तीनों जो हरूफ है ना, गौद या दौद
तो और वो, ये तीनों क्या हैं भला? जी बताइए। इन तीनों हरूफ में क्या चीज जो है सेम है? ये तीनों मोटे हैं हरूफ। मोटे हैं बिल्कुल। देखें जी अगर हम तऊ करेंगे ना, तऊ, जी आपको पता है तो से मिलती जुलती एक और आवाज लेटर की है, वो कौन सा लेटर है भला जिसकी आवाज से मिलती जुलती है? जी कौन सा लेटर है, कौन सा हरफ है वो? तो नहीं, तो ये है ना, इससे मिलती जुलती आवाज वाला और कौन सा हरफ? ता। ता जो है ता ना, ता की जी आवाज जो है वो तो जैसी है, दोनों की आवाजें मिलती जुलती हैं। अगर हम जी तो को बारीक पढ़ेंगे तो ये ता बन जाएगा, यानी कि एक लेटर, एक पूरा हरफ ही चेंज हो जाएगा ना। हमने जी क्या ध्यान तई रखना है? तई हाँ, तो को मोटा पढ़ना है, तो तो तोई तई तो तई और तोई। इसी तरह वो, ये मोटा हरफ है, इस मोटे जी हरफ को हम अगर रा कर देंगे तो ये या तो जाल बन जाएगा, या और ज्यादा सीटी पैदा कर देंगे तो ये जा बन जाएगा। लऊ, इस तरह नहीं, वो को मोटा करना है, वऊ वई। जौ जई और मोटा कीजिए, जौ जौ जई जौ वऊ, देखें वऊ वई। जौ जई। आपने इन हेलो तीनों की मैम। प्रैक्टिस करनी है, बस उसका फिर मैम आपने कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे मैम आ रही है ऐसे लग रहा है लेकिन जैसे बहुत दूर से आ रही हो। आपको ऐसे लग रहा है मैम ना, जी वो वैसे जरूरी है आपकी कि दोबारा आपकी जिनको आवाज क्लियर है। हाँ जी जिनको आपकी लग आवाज रहा है क्लियर वो है। अपना लीव करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें, शायद मे बी हम्म, नेटवर्क में कोई इशू हो, या हमें मे सही बी। आ रही है आवाज, हमें साफ आ रही है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, जो मोटे हरूफ हैं उनकी एक तो प्रैक्टिस करनी है आपके टीचर्स के साथ, उनको सुनाना है, ठीक है, और उनके साथ आपने मिलकर इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिनको कम आवाज आ रही है ना, वो यहाँ पे ईयरफोन वगैरह लगा लें, उससे भी आवाज बेटर हो जाती है, क्योंकि आजकल पंखे वगैरह चलते हैं ना, आवाज वैसे ही अच्छी बड़ी आवाज भी कम ही सुनाई देने लग जाती है। तो हेडफोन जो भी जिसके पास जो भी है एयरपॉड्स वगैरह वो यूज करें। जी जी नेक्स्ट। हमें साफ आ रही है आवाज। जी, शाहजहां के बाद कौन है नेक्स्ट? शाइस्ता जी। जी। लऊ लई नऊ लव नई औ लव आई। माइक बंद कर लें बाकी। जी बारकल्ला। नेक्स्ट 18 पे शाजिया। जी मैम। बऊ बई जऊ जई खऊ खई हाँ, हाउ, हा को बस से हलस लगाइए। हऊ हऊ खई। बारकल्ला। नेक्स्ट सिमरा। मैम नेक्स्ट भी पढ़ना है। नहीं नहीं, नेक्स्ट कौन है? ठीक माइक है। बंद कर लें, किसका माइक ऑन है? हऊ हई औ ऐ गौ गई। तो क्या मुझे बताइए, जरा दोबारा से पहले वाले दोबारा पढ़िए, मैं सुन नहीं पाई। खऊ खई। अच्छा मुझे बताइए, हऊ और गऊ, इनकी आवाजों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों को मोटा पढ़ना है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह जी, बारक जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट सिमरा के बाद कौन है? जी 20 इरफाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लास्ट वाली लाइन। जी नहीं बताइए। नहीं हूँ जी मैं। अच्छा चले पढ़िए, आप पढ़ेंगी? आखिरी वाली लाइन पढ़ जी के दिखाइए मुझे जरा। जी जी कहाँ से शुरू करना? आखिरी वाली लाइन बिल्कुल। जी पऊ पऊ गई कऊ गई ओ गई। अच्छा अब ये देखें, जो पहले वाला कॉफ है ना, जो मोटे, जो नुक्तों वाला कॉफ है, ये हरफ जो है जी मोटा है, ठीक है। जी और जो डंडे वाला काफ होता है ये बारीक हरफ होता है, ठीक है। जो मोटे वाला काफ है ना, इसको आपने
जुबान के पीछे वाला जो सबसे आखिर वाला हिस्सा है ना, वो आपके नरम जी तालू को लगे। नरम तालू कहाँ पे है? जो हमारे गले में कव्वा लटक रहा है ना, उसके नजदीक आपकी जड़ लगनी चाहिए जुबान। क क काऊ काऊ, मोटा कीजिए इसको। कऊ कई कई कई। कऊ कई अब आपने ना इन मोटे हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ये मोटा जी काफ पीछे से निकलता है, जो बारीक काफ जी है वो आगे से। कऊ, और ये कई, और उसकी आवाज क्या है? कऊ कई कऊ कई, पीछे से निकालनी। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। जी नेक्स्ट, नसरीन सैयद। जोरिश। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी यार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मऊ मई वाऊ वई वाऊ, हाउ देखिए देखिए, हई। वाऊ में वाऊ, वाव को लंबा नहीं करना, वाऊ नहीं, वाऊ। जल्दी के साथ जबर को जल्दी से अदा करना है, और जबर को लंबा नहीं करना। ठीक है, दोबारा से। वाऊ वई गुड। हाउ हई यऊ यई। बारकल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट। मैम मैम मैंने म्यूट ही नहीं किया था। मैं पूछ रही हूँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं, आ माइक रही है आपको? अब आ रही है, माइक आपका निकले ओपन था। अच्छा, आप नसीम यहाँ से पढ़िए, ये मोटे वाले हरूफ वाली लाइन पढ़िए, दौद वाली लाइन। ये मैं निशान लगा। अच्छा। दऊ दई तऊ तई। तो सही नहीं, देखें, कौ और कौ, कौ कौ मोटा, कोई कौ ओके। कौ कोई। तऊ तई रऊ जई वौ व व वौ रौ वई। रौ रऊ जई। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। नेक्स्ट, कौन रह गया है? और हादिया यूसुफ। मैम मैं भी रहती हूँ 25 सुमेरा महमूद। ओके, सुमेरा, आप ना ये वाली लाइन पढ़िए, सेकंड वाली लाइन। ठीक है मैम, बिस्मिल्लाह। जऊ जई जाल को रऊ आराम से देखिए, जाल को उसके मखरज के साथ जुबान की नोक नरम लगा के ऊपर दांतों को नरमी से टच जी करनी है। जा जी। रऊ, सीटी ना पैदा हो। जऊ जऊ जई रऊ रई जऊ जई। अच्छा, रऊ तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, रा आपका अच्छा था। रई, इसमें भी रा मोटा करना है। ठीक है, रा पे जी जबर, जी रई। ठीक है। रई हम्म रई। और जा में हम क्या करेंगे भला? जा के लिए क्या मैम करना है? इसमें जी मैम हरूफ सफीरी है ना, तो नीचे के दांतों के साथ करके हाँ, और सीटी जऊ पैदा कीजिए, सीटी जऊ अच्छी अच्छी सी। जऊ जई हाँ, जऊ जऊ जई। जऊ जऊ जई। दांत जो है ना आपके दोनों ऊपर नीचे के दांत करीब करीब जी आ जी जाएंगे। जऊ जऊ। जी। जऊ हम्म जई गुड। ठीक है, जऊ इस तरह प्रैक्टिस करनी जई। है ताकि इसकी सीटी जी आपकी और क्लियर हो। ठीक है, जी बारकल्लाह। अच्छा मैम। जी नेक्स्ट कौन है और रह गया? हादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आप पढ़िए सेकंड लास्ट है खा वाली। खाऊ खई हम्म, औ आई आइन, आइन को और हलक से। आउ आई। औ आई हम्म, गौ गई गौ गौ गौ, गाइन मोटा है, गौ गई। गौ गई। अच्छा, आपने आइन की प्रैक्टिस करनी है। आपकी आइन जो है ना, मुझे अच्छी वाली सुनाई नहीं दी। आ आउ आई। ठीक है, आउ हलक के दरमियानी हिस्से से इसको निकालिए। दोबारा से जरा आइन को अदा कीजिए। औ आई। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आपने अपने टीचर के साथ करनी है। ठीक है ठीक है। जी। और कौन रह गया है? सबका हो गया है एक दफा? मैं रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी रुबीना, आप पढ़िए जी रुबीना। जी सीन वाली लाइन जो है।
थर्ड वाली लाइन। सऊ सई हम्म, सऊ सई सऊ नहीं सई देखिए, सब में सीन की आवाज, शीन की आवाज मुझे नहीं आई कहीं पे भी। ये सऊ सीन है, सई देखिए सीन जो है ना, सीन के अंदर हम जी एक आवाज, सीन की क्या सिफत है, एक कि सीन में सीटी की आवाज होती है। कैसे पैदा करेंगे सीटी की ओके आवाज? जुबान की नोक को सऊ नीचे वाले दांतों को लगाइए, नीचे वाले दांतों के अंदर लगाइए और सऊ दांतों को करीब करीब कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं सऊ मिर्ची वहां से लगी तो बस सी करते हैं। सऊ जी सई। सऊ सई और शीन में शऊ, शीन की आवाज, सऊ सई आवाज शोर, शीन का शोर सुनाई नहीं दे रहा। शऊ शई। सऊ सई सबने माइक खोला हुआ है, बहुत शोर माइक से आ रहा है। जी वो अरे आवाज सीधी नहीं आ रही जी किसका माइक खुला शऊ रहा शई। सऊ सई सऊ स्वाद, सई स्वाद देखिए, अच्छा मुझे बताइए आप, स्वाद में और सीन में क्या फर्क है? स्वाद और सीन में मैम इनकी मेरा आवाजों में मेरा क्या फर्स्ट फर्क है? क्लास है आज की आज मैंने फर्स्ट काफी अर्से के बाद ली है सऊ देखिए अब जो पीछे ये इतने लेसन हरफ, मैंने इतने आपको लेसन सुना है गुजर गए हैं, वो कैसे कवर होंगे? जी जी मैंने शुरू किए हैं सारे लेसन अच्छा मैं आज थोड़ा से सा पढ़ रही हूँ बताती हूँ, जी आप अल्लाह, मैंने बताया, अभी भी बताया भी है मैंने, बार बार बताया मैंने। जी सीन की जी आवाज जो होती है ना, बारीक होती है, और जो स्वाद की आवाज होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, हम इसमें फर्क जी कैसे करेंगे? सीन को हम अदा करेंगे तो देंगे सऊ, बारीक सी थी, सऊ। और जब स्वाद की हम आवाज निकालेंगे तो इसकी मोटी सी होगी, सौ सौ, सऊ सऊ, और सऊ, सऊ बारीक, सऊ मोटा। ठीक है, ओके सीन बारीक है, ओके स्वाद मोटा है। ओके और शीन ओके में शोर सा होता है, अश, शऊ, शई। ओके ठीक है आपने ये पूरी जब पढ़ो अपनी ना में पढ़ी है ना, यहाँ से लेके जी पहले जी लाइन से एंड तक, अपनी टीचर के साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी इसकी समझ जो है वो बिल्कुल ठीक हो। ओके ठीक ओके बस। ठीक है जी ओके महविश। अस्सलाम वालेकुम ठीक है अस्सलाम जी महविश, आप पढ़िए दो वाली लाइन, दो। महविश आपका माइक बंद हो गया शायद। अच्छा बाकी कौन कौन, कोई रह गया था? सबने, सबका हो गया है? कोई रह गया आप में से? ओके, मुझे लग रहा है सबका ही हो गया है। कोई रहता है तो हैंड रेज कर लेगा तो इंशाल्लाह, अदरवाइज तो मुझे लग रहा है सबका हो गया। ठीक है, चलिए अब आपने इसकी जो है, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 महविश, क्या हाल है मैडम, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब ये वाली जी लाइन पढ़िए, फोर्थ लाइन पढ़िए। दाव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाव दाऊ, दी। देखिए देखिए एक मिनट, देखिए दा, दाऊ करेंगे ना, दाद के बाद अलिफ लग गया, दाऊ, अलिफ तो नहीं लगाना, इसको जल्दी से अदा करना है। वाऊ, वाज जबर वाऊ, वाऊ। वाज, दुआ जबर वा दौ। दुआ गुड जबर या दे। गुड। दुआ जबर वा तौ। दुआ जबर या ते। गुड दुआ जबर वा जौ। दुआ जबर या जे। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अब आपने जब टीचर के साथ प्रैक्टिस करनी है, लैम जबर वा लौ। बस बस काफी है, बस। जी अब आपने करना क्या है अपने टीचर के साथ, जो मोटे हरूफ, बस ध्यान ये रखना है कि मोटे हरूफ को, जो ग्रीन में लेटर्स है ना, जो ग्रीन कलर के हैं, ये सारे मोटे हरूफ पढ़ने पढ़ने जाने वाले हैं, ये मोटे पढ़ेंगे हम। तो इन मोटे हरूफ की आपने ठीक प्रैक्टिस, है ठीक है। और ये ठीक पूरी है यहाँ से लेके एंड तक आपने अपने टीचर के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक बारकल्लाह। है और कोई रहता है? ठीक है जी ठीक है, साइमा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश, देखें अल्लाह ताला हमसे कोशिश मांगते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, बाकी सिखाना तो अल्लाह ही के जिम्मे है। जी साइमा, साइमा आप पढ़िए सेकंड वाली लाइन, जाल वाली। साइमा आपका माइक बंद हो गया। जी मैम, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेकंड लाइन आप पढ़िए।
मैम कहाँ से जऊ जई जी जी जऊ जई रऊ रई जऊ जई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सबसे बहुत दफा पूछा है, अब आपसे भी पूछ रही हूँ कि गाल और जा की साउंड में क्या फर्क है? मैम दोनों सेम मैम। बिल्कुल सेम, एक जैसी आवाज निकलेगी इनकी। जी नहीं, एक जैसी आवाज नहीं। मैम नहीं, जाल में बजिंग साउंड आता है। अब देखिए, हम ना यहाँ पे उर्दू नहीं पढ़ रहे। उर्दू में चूंकि इनकी आवाजों में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अरबी में भी फर्क नहीं है। अरबी में हर लेटर की आवाज डिफरेंट है, अरबी में हर लेटर की सिफात डिफरेंट है। ठीक है, अरब जो हैं वो बड़े पर्टिकुलर हैं अपने लेटर्स के बारे में, हर हर लेटर दूसरे से डिफरेंट है। जाल की आवाज नरमी से अदा, जाल एक नरम हरफ है, नरमी से अदा किया जाता है, सख्ती से अदा नहीं किया जाता। ठीक है, जाल के लिए हम क्या करते हैं, जुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारों से नरमी से लगाते हैं और जाल बारीक अदा करते हैं। जबकि जा जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जुबान की नोक नीचे वाले दांतों को लगाते हैं और तेज श्रिल सी आवाज, सीटी जैसी आवाज, श्रिलिंग साउंड, ये साउंड जा, जऊ, जई, इसकी आवाज में सीटी होगी जा की आवाज में, जबकि जाल की आवाज नरम होगी जा, जा, जऊ, जऊ। जुबान को थोड़ा सा दांतों से बाहर निकाल के जऊ और जई। आपने सारे हरूफ तहज्जुद की प्रैक्टिस अपने टीचर्स के साथ करनी है, कोई लेटर छोड़ना नहीं है, स्पेशली जिन पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, जैसे कि सेकंड लाइन पे मैंने फोकस किया ज्यादा, इसमें सा था और सीन शीन स्वाद वाले जो थे, मोटे हरूफ जो थे, ख्वा वाले हरूफ थे, ठीक है, ऑफ और काफ थे। ये टीचर्स भी इनको नोट कर लें इन चीजों को। ये इनको आप लोगों ने प्रैक्टिस इन लेटर्स की बार बार करवानी है और इन लेटर्स को ठीक करवाना है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि अपने अपने टीचर वाला रूम जो है ज्वाइन कीजिए अपने टीचर्स के नाम का, और आप लोग अपने टीचर के साथ क्लास को लीजिए। ठीक है, चलो जी।